Hello everyone, welcome to Apti Plus IS Academy. So today in this video we'll discuss the daily topic wise news analysis, and the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu as well as from the Indian Express, right? So we'll try to figure it out the important news, the important topic that is relevant for you in terms of prelims and mains examination. So let's get started. And before I begin, I would like to tell you that we have organized a mock test series. So this is a mock test series basically where there will be 25 tests, 13 would be for full length and 12 would be for current affair, right? So you can check more details on the description of this video, और आप कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. So coming to the today's topic, today is 1st of June. So these are the list of the topic, that is SpaceX spacecraft, Scorpion fish, US report on religious freedom, universal basic income program, line of actual control, and the MCQs question would be there with explanation. तो कल के जो सवाल थे, सैटरडे के जो क्वेश्चंस थे, उसके एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, और आज जो MCQs के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now first is from the Hindu. Basically आप अगर देखें इस टॉपिक SpaceX spacecraft के बारे में, so this is there in the Hindu as well. न्यूज़ जो है, जो टाइटल है SpaceX aircraft successfully docks with ISS, right? So this is again a very important news in terms of science and technology portion, जहाँ पे डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. So first thing first, SpaceX एक कंपनी है, यूएस की काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा. They have launched a crew called Dragon spacecraft. जो spacecraft का नाम है that is Dragon. So this name is also very important. और इन्होंने नासा के साथ कोलैबोरेट करके एस्ट्रोनॉट भेजे हैं ऑर्बिट पे, राइट? So there are two live astronaut would be there, जिनका नाम है बॉब मैकन एंड डॉग हॉर्ले. So these are some of the successful like private partnership के साथ पहली बार ऐसी हुई है कि नासा के दो एस्ट्रोनॉट गए हैं, राइट? So this is the first crewed mission. और बात करें द लॉन्च की, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द फर्स्ट टाइम दैट नासा हैज़ लॉन्च इट्स ओन एस्ट्रोनॉट सिंस द एंड ऑफ द स्पेस शटल प्रोग्राम नियरली अ डिके अगो. कुछ 10 साल पहले इस तरह का स्पेस ह्यूमन शटल प्रोग्राम बंद कर दिया गया था नासा की तरफ से, बट स्पेसएक्स के कोलैबोरेशंस के साथ, ओके, जो स्पेसएक्स के कोलैबोरेशन के साथ नासा ने फिर से इसको एक बार स्टार्ट किया है, राइट? नाउ इट मार्क द ड्रू ऑफ न्यू एज कमर्शियल ट्रैवल. तो बेसिकली पूरा मोटिव है कि किस तरह से अगर कमर्शियल स्पेस एयर ट्रैवल की तरफ अगर आगे बढ़े तो क्या उसका एक ये रास्ता हो सकता है. सो दिस इज ऑन द ट्रायल बेसिस एंड दिस वुड डेफिनेटली इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ कमर्शियल स्पेस ट्रैवल. नाउ ये है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट. दिस इज इन द इमेज विच यू कैन सी, and the details about it is such like Dragon spacecraft is capable of carrying 7 passengers into the Earth orbit. So 7 passengers को ये carry कर सकता है. So this is the image of the inside of the Dragon spacecraft. आप देख सकते हो there are 4 seats this side and the 3 seats are lying this side, right? So they are capable of carrying total in general 7 astronauts, right? And this is the only aircraft that is currently flying with the capability of returning to the significant amount of cargo to the Earth. So this would be acting as a cargo aircraft between the Earth and this orbit, right? And this is the first private aircraft to take human to the space stations, right? So this is again a very significant news, and a direct question can be asked in your prelims examination, right? So this is the two images which will help you out to understand what exactly is there. Now coming to talking about the SpaceX. SpaceX बेसिकली मैंने आपको बताया एक प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्होंने बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की हेडक्वार्टर्ड कैलिफोर्निया में है. और अगर बात करें इसकी एस्टैब्लिशमेंट की, तो इट वाज फाउंडेड इन 2002 विद अ गोल ऑफ रिड्यूसिंग द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इनेबल द colonization ऑफ मार्स, राइट? और SpaceX की अचीवमेंट की बात करें तो ये प्राइवेट फंडेड कंपनी है, बेसिकली खुद सेल्फली ओन्ड है. इन्होंने पहले लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट सिस्टम भी बनाया जिसका नाम रखा गया था Falcon 1 2008. सो मेनी ऑफ यू हैज़ बीन रीडिंग अबाउट दिस स्पेस सेक्टर, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ Falcon 1. और SpaceX बिकम एक पहली कंपनी है दैट हैज़ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल इनटू द ऑर्बिट, एंड इट हैव अचीव ओनली 3. इससे पहले 3 सिर्फ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है अपार्ट फ्रॉम SpaceX. तो SpaceX तो प्राइवेट कंपनी है और ये पहली कंपनी है. इससे पहले गवर्नमेंट के सेक्टर्स की तरफ से, गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने इस माइलस्टोन को पहले अचीव किया था, रशिया और चाइना, ओनली 3 कंट्रीज.
and India had still not achieved any of this. We are still in progress. Hopefully very soon we'll also make it. तो अभी के लिए फिलहाल 3 कंट्रीज हैं और प्राइवेट कंपनी पे सिर्फ सिंगल, दैट इज SpaceX. फाइन. नाउ कमिंग टू द अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्कॉर्पियन फिश. आप इस पे रिलेटेड एक न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं हिंदू पे, जो कि आपको आज बेसिकली लास्ट पेज में मिल जाएगी. जो टाइटल है न्यूज़पेपर की, दैट इज रेयर स्कॉर्पियन फिश फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार. सो बेसिकली रिसर्चर ने सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CMFRI भी कहते हैं, वहाँ पे कुछ रेयर फिशेस की वैरायटी पाए हैं जो कि सेतु खराई कोस्ट है, बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार में. आप इमेजेस में देख सकते हो, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ इंडिया. बेसिकली बात करें अगर ईस्टर्न कोस्ट की, तो साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट पे रामेश्वरम इज द लास्ट पॉइंट एंड दिस इज Mannar, and this is where between this somewhere it has been found, and this is Sri Lanka, right? This is Sri Lanka and this is India. So it was the first time that particular species was found alive in Indian waters. ऐसा पहली बार हुआ कि alive पाया गया. मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना, where things are being found, it is found dead in the seas, down under the seas, but this is the time which they have found alive. बात करें डिटेल में, what is a scorpion fish? तो बेसिकली दिस इज द इमेज ऑफ द स्कॉर्पियन फिश. आप देख सकते हो, दे हैव द मल्टीपल कैपेसिटी. मैं बताऊंगा इसके बारे में कि और ये क्या क्या चीज़ें कर सकती है. सो फर्स्ट, इट इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रिंगिंग वेनमस स्पिंक्स. जो इसके स्पाइंस हैं, ये जो आप इसके स्पाइंस देख सकते हो, दिस इज विजिबल हेयर. होप दिस इज विजिबल. स्पाइंस, दिस इज विजिबल. ये जो स्पाइंस है वो काफ़ी वेनम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं, राइट. एंड इट कैन कैमोफ्लैज्ड विद सी ग्रास मिडोज. जो सी ग्रास मिडोज समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, उसके साथ ये कैमोफ्लैज कर लेती है, अपने कलर को चेंज कर लेती है. एंड द फिश इज कॉल्ड स्कॉर्पियन फिश बिकॉज ऑफ द स्पाइन कंटेन द न्यूरोटॉक्सिक वेनम. जो इसके जो स्पाइंस हैं, इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम्स होता है. अगर एक बार ये किसी को अपने स्पाइन से इफेक्ट कर दे तो इट इज़ वेरी लाइकली दैट द इंडिविजुअल विल डाई. ठीक है. एंड इट इज़ फाउंड ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेटरी सर्वे ऑफ द सी ग्रास इकोसिस्टम. जब सी ग्रास इकोसिस्टम के बारे में पूरी जायजा ले जाया था ना, सर्वे की जा रही थी, उस टाइम पे इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है. जहाँ तक बात करें अगर इसके कैमोफ्लैज की, तो मैं एक इमेज दिखाना चाहूँगा आपको. सो दिस इज द इमेज, लाइक यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ स्कॉर्पियन फिश, लाइक. सो इट्स कैमोफ्लैज. ये सी ग्रासेस को आप देख सकते हो, उसके साथ पूरी तरह से ये कैमोफ्लैज कर लेती है अपने आप को, एंड इट इज़ वेरी टफ टू आइडेंटिफाई कि ये वही है, राइट. And it has the ability to change color and blend with the surrounding environment and escape from the predator while preying. So this, it has a capacity, and the fish has the ability to change its color. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये camouflage करके अपने कलर को भी चेंज कर सकती है. So this in general बहुत ही important है prelims point of view से. Generally environment में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. Now coming to the other important topic, that is US report on religious freedom. ये भी काफ़ी पहले न्यूज़ में रही थी, इस बार फिर से इसको फैज़न मुस्तफ़ा ने लिखा है. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट. 2 में भी और जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में भी. सो US कमीशन, जो US की जो कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको USCFI भी कहते हैं, उन्होंने इंडिया की जो रैंकिंग है उसको डाउनग्रेड किया है, उसको और लोअर किया है. अब जो कैटेगरी हमें दी गई है, दैट इज़ कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जिसको CPC भी कहते हैं. दिस इज इन द 2020 रिपोर्ट, राइट. और इंडिया हैज़ गॉट दिस टैग बिफोर. इससे पहले जब हमें ये टैग मिला था, जब गुजरात राइट हुई थी इंडिया में 2002 में, उस समय ये टैग मिला था. नाउ US रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया कॉल्स फॉर द रिफ्लेक्शन, कि भाई जिस तरह से आपका इंटरनल मैटर्स हैं उसको सॉल्व करिए, और बहुत सारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिलीजियस को लेकर के, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के, जिस वजह से इंडिया की रैंकिंग को CPC पे रखा गया है, राइट. तो बात करें CPC कंट्रीज़ क्या होती हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हो जिनको CPC में रखा जाता है. तो वैसे गवर्नमेंट जो इंगेज करती है जहाँ पे इंटॉलरेंस काफ़ी कम है, ठीक है, एंड वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, या जहाँ पे जो मानव अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसका सबसे ज़्यादा वायलेशन हो रहा है. तो वायलेशन इंक्लूड टॉर्चर, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, प्रोलॉन्ग डिटेंशन विदाउट चार्जेस एंड अदर फ्रेगनेंट डिनायल टू राइट टू लाइफ और राइट टू सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन. जब ये सारी चीज़ इम्पैक्ट होती है किसी कंट्री में और एक सिटीजन को ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, देन दैट कंट्री इज बीइंग काउंटेड एज CPC कंट्रीज बाय द US, राइट. अगर बात करें
USCSIR जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बाय पैटिशन है बेसिकली यूएस फेडरल गवर्नमेंट की। तो ये स्टैब्लिश की गई थी 1998 में और इनका बेसिकली इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और ये यूज़ करती है कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, जैसे मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम कैसे मॉनिटर किया जा सकता है पूरे ग्लोबली कि किसी भी तरह के वायलेशन ना हो। उसके अलावा पॉलिसी फॉर रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द कांग्रेस, राइट। उसके अलावा ये मॉनिटर करती है रिलीजियस अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस। तो ये यूएस में चीज़ों को इवेलुएट नहीं करती, वहाँ मॉनिटर नहीं करती रिलीजियस फ्रीडम को, बाकी उसके अलावा सारे कंट्रीज में करती है, राइट। बात करें कुछ नोटेड कंसर्न की जो रेस की गई है, तो सबसे पहले बातें बताई गई है कि जो हमारा CAA है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसको लेकर के मुस्लिम के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक डिस्पैरिटी की गई, अनइक्वालिटी की गई है मुस्लिम के लिए। सो दिस इज़ व्हाट दे हाईलाइटेड। उसके बाद कहा गया है जिस तरह से एब्रोगेशन हुई है आर्टिकल 370 की इन जम्मू एंड कश्मीर, और जो सिविल लिबर्टीज़ हैं आर्टिकल 35 ये भी वहाँ पे रिवोक कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। सो दिस इज़ अगेन द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। दिस इज़ व्हाट दिस रिपोर्ट कोट्स, राइट। और जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, जिसको NRC भी कहते हैं, उस प्रोसेस को भी इन्होंने ह्यूमन राइट के अगेंस्ट बताया है। बट अगर इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है, इस यहाँ के रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को, एंड दे सेड कि दिस इज समथिंग विच इंडिया गवर्नमेंट डू नॉट अफर्म इट, राइट, उसके साथ इत्तेफाक नहीं रखती है। तो इंडिया हैज़ कम्प्लीटली रिजेक्टेड देयर स्टैंड एंड देयर रिपोर्ट्स। नाउ अगर रोड अहेड की बात करें तो बेसिकली इंडिया हैज़ बीन कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न। पहले CPC से पहले पहले कंट्री की जो स्टेटस थी वो कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न थी, ठीक है। बट अभी रैंकिंग और डिटोरेट कर दी गई है, और हमसे अच्छी जो रैंकिंग है वो अफगानिस्तान की है, सूडान की है, इंडोनेशिया की है और इजिप्ट की है, राइट। सो दिस इज अगेन अ सीरियस कंसर्न फॉर इंडिया कि जो इतने छोटे देश हैं उनकी रैंकिंग हमसे अच्छी है। नाउ द नेशनल गवर्नमेंट शुड यूज इज टू स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इन द नेशनल लेवल, वॉयलेटिंग द राइट टू फ्रीडम अक्रॉस इंडिया स्पेशली मुस्लिम। तो ज़रूरी है कि जो मुस्लिम है या फिर जो भी रिलीजियस राइट है, जो इंडिविजुअल लोगों की जो रिस्पेक्ट है वो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, राइट। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, और एक सेकुलर कंट्री में ये ज़रूरी है कि सभी लोगों को एक पैरिटी मिले, सभी लोगों को एक इक्वालिटी मिले, राइट। सो दिस वुड बी द वे हेड फॉर इंडिया टू गेट अ लेसन। ठीक है, इंडिया ने अभी बेसिकली रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है, बट आने वाले समय में इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम, जिसको UBI भी कहते हैं, उस पर आप हिंदू में आज एक आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं जिसका टाइटल है इट्स टाइम फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन इंडिया। तो बात करें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, तो एक ये बेसिकली रेडिकल और कंपेलिंग पैराडाइम शिफ्ट होगा अगर हम इसके तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो पूरा UBI है, जो UBI का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट कॉल फॉर सोशल जस्टिस एंड प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। फाइन। अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अगर देखें तो क्या है, दिस इज अ रेगुलर पीरियोडिक कैश पेमेंट डिलीवर्ड टू द अनकंडीशनल इन ऑल सिटीजन। तो जितने भी हमारे सिटीजन है उसको बिना किसी कंडीशन के एक बेसिक इनकम प्रोवाइड करानी है इंडिविजुअल बेसिस पे, ताकि जितने भी रिक्वायरमेंट है उनके वो पूरे हो सके। जो बेसिक नेसेसिटी है, अभी जैसे इंडिया में लॉकडाउन है, उसके बाद सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि सरकार को UBI की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं UBI के? तो फर्स्ट, इट एक्ट एज अ टूल टू इरेडिकेट द पॉवर्टी। जो गरीबी है उसके उन्मूलन में, उसको हटाने में सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है। एंड मेनी कंट्रीज हैव अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। हमारे अलावा और भी ऐसे कंट्रीज है जिनके पास ऑलरेडी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रोसेस चल रहा है। सो दिस इज समथिंग टू मिटिगेट लूमिंग क्राइसिस काउज्ड बाय द डिवेलिंग ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इंडिया में अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कम है, करोड़्स में लोगों की नौकरियाँ गई हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे एक पैरिटी लाया जाए और लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ ज़्यादा बढ़ाया जाए, राइट। सो UBI कैन बी इन ट्रू सेंस इंटेल द प्रोविजन ऑफ अनकंडीशनल फिक्स अमाउंट टू द एवरी सिटीजन इन द कंट्री। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट, कुछ भी, जैसे सरकार अगर मान लो एक्स अमाउंट डिसाइड करती है, इफ दे डिसाइड अपॉन 5K या डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर, या दे डिसाइड अपॉन 10K, सो दिस वुड बी समथिंग विच वुड बी अनकंडीशनल टू ईच एंड एवरी सिटीजन, right? And it ultimately improve the financial inclusion of the country.
जो हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ओवरऑल डेमोग्राफी को देखते हुए, तो वो सारी चीज़ों को भी प्रमोट करती है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूबीआई। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी आपने पढ़ा होगा, बट यू हैव टू मोर कंसर्न अबाउट एडवांटेजेस। और जब भी आप आंसर लिखो तो वहाँ पे आपके न्यूट्रल अप्रोच होनी चाहिए आंसर में, राइट। यू डोंट हैव टू बी वेरी क्रिटिक until it is asked in the examination, in the questions, right? Now कंट्रीज जिन्होंने अडॉप्ट किया है यूबीआई को पहले, तो कुछ कंट्रीज हैं जैसे केन्या है, ब्राज़ील है, फिनलैंड है एंड स्विट्जरलैंड। सो दीज आर द कंट्री दैट हैव ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूबीआई इन द पायलट सिस्टम, और पायलट बेसिस पे उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया टू सप्लीमेंट देयर पॉपुलेशन, तो उनकी जो मास पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो क्या वे फॉरवर्ड है इंडिया के लिए? तो यहाँ पे ज़रूरी है कि पे चेक्स की जाए, एटलीस्ट इकोनॉमी को नॉर्मलाइज करने के लिए ये अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जिस तरह से ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है कोविड-19 की, तो वहाँ पे इस टाइम पे ये डिसीजन सरकार के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। एंड दिस कैन ऑल्सो डिलिब्रेट द इफेक्टिव पॉवर्टी इरेडिकेशन टूल। इंडिया में जिस तरह से गरीबी है, जो डिस्पैरिटी है, जो अनइक्वालिटी है, उसको एम करने में, उसको कवर करने में ये बहुत हद तक मदद कर सकती है। और 2017 की अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो यूबीआई स्कीम के तरफ भी जोर दिया गया, जहाँ पे बोला गया था एक पॉसिबल अल्टरनेटिव के तौर पे यहाँ पे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के हिसाब से इसको पॉवर्टी रिडक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकती है सरकार आने वाले समय में। बट इफेक्टिवली इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। लेट्स सी पोस्ट कोविड के बाद क्या डिसीजन सरकार के होती है, बिकॉज यूबीआई इन जनरल वुड बी बेनिफिटिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया मेंस में, तो यूबीआई के फेवर में ही आपको ज़्यादा लिखनी है, ना कि क्रिटिक करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस तरह के आर्टिकल भी आपको आज के हिंदू में मिल जाएंगे, जहाँ टाइटल है फैंथम कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो विल सी द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि पहले भी हमने अपने एडिटोरियल में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी रेफर कर लें, और इसके साथ आप आज के जो टॉपिक उसके साथ सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। सो दिस इज़ द टेंशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और LAC जो है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दैट हैज़ ऑलवेज रिमेन एज अ मेजर कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। ऐसा नहीं है अभी हो रहा है, ये टेंशन काफ़ी टाइम पहले से बनी हुई है, आज़ादी के बाद से ही, राइट। सो व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? सो बेसिकली LAC क्या है, एक डिमार्केशन करती है जहाँ पे जो इंडियन कंट्रोल टेरिटरी है और जो चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी है उसके हिसाब से। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3,488 किलोमीटर लॉन्ग, जो हमारी बेसिकली जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो इतनी है, और चाइना की जो डिस्प्यूटेड दैट इज़ ओनली 2,000 किलोमीटर्स। तो वी हैव मोर एरिया दैट इज़ बीइंग अंडर डिस्प्यूटेड, राइट। और अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो इस मैप में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जो रीजन है, राइट, ये वाला जो रीजन है मैकमोहन लाइन वाला, यहाँ पे अगेन ज़्यादा डिस्प्यूट है। उत्तराखंड वाले रीजन पे दिस इज द रीजन वेयर दिस इज द डिस्प्यूटेड एरिया, एंड अभी जो डिस्प्यूट चल रही है वो वेस्टर्न सेक्टर ऑफ लद्दाख। तो ये वाली जो रीजन है अभी यहाँ पे प्रेजेंटली, दिस इज द पॉइंट वेयर द डिस्प्यूट हैज अराइजेस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, आप मैप से पिक्चर क्लियर कर सकते हैं। सो 3 रीजन, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, राइट। सो मेक श्योर कि आपको ये बेसिकली मैप ध्यान हो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए, अगर प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन आए डायरेक्ट मैप वर्क से भी, तो आप उसको आराम से क्लियर कर सकें। नाउ व्हाई टू साइड्स आर क्लैशिंग, क्या ऐसे रीजंस हैं जो वो क्लैश कर रहे हैं? तो सबसे पहले बेसिकली अगर बात करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर के लद्दाख वाले रीजन में अभी जो सिविलियन एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और जो रोड बनाई गई थी, उसको लेकर के चाइना ने क्या किया, पेट्रोल स्टार्ट किया था, एक एग्रेसिव पेट्रोलिंग स्टार्ट की गई। और इंडियन आर्मी की एक्टिविटी जो DBO है, वहाँ पे जो रोड एक्टिविटीज़ बनाई गई, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनी, उसको लेकर के चाइना ने बहुत ज़्यादा बेसिकली अपने एंड से टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की है। और जो मैनिफेस्टेड है बेसिकली जो गालवान सेक्टर है पोंगोंग लेक में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लास्ट कनेक्शन पॉइंट बनाती है उस जोन के, राइट। एंड सम ऑफिशियल स्पेकुलेशन इज दैट चाइना इज पुनिशिंग फॉर पब्लिशिंग अ रिवाइज रोड मैप, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो नए, जब तरह से नई मैप UT की जब बनी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, तो वहाँ पे जो स्काई चीन वाली जो मैप है, वहाँ इंडिया ने उसको अपने टेरिटरी में दिखाया है, और चाइना भी क्लेम कर रहा है कि दैट इज़ देयर टेरिटरी, राइट। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊँ, जो रोड बनी है
रोडवेज बनाई गई थी, करीबन 25 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो वो रोड बेसिकली मानसरोवर, जो कैलाश मानसरोवर वाले जो एरिया है वहाँ को कनेक्ट करती है और एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन में कैलाश मानसरोवर का यात्रा हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट नेपाल और चाइना के बीच जो रीजन में है उस वजह से भी डिस्प्यूट हमेशा बरकरार है। Now another point is that the traditionally peaceful Galwan River जो है that is becoming the hotspot where the line of control is closest to the new Indian road। ठीक है, जो नई रोड है वो गालवन रिवर के बहुत ही पास है। इस वजह से इंडिया चाहती है कि वहाँ पे वो टेरिटरी इंडिया के अंदर एक्वायर्ड हो जाए, ना कि चाइना के पास रहे, बिकॉज स्टिल डिस्प्यूटेड और जो मेजर बेनिफिशियरी है वो एक्चुअल में इंडिया है। बट बीइंग चाइना वांट टू डोमिनेट दैट एरिया, सो दैट इज अ मेन रीजन दे आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर टेंशन, राइट। सो ये बेसिकली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इस पे मेंस पे भी सवाल बन सकते हैं और प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट स्टेटमेंट पे हिसाब से सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। नाउ आपको मैं ये बता दूं कि हमने टेलीग्राम चैनल पे एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। सो दिस इज़ डेडिकेटेड टू योर आंसर राइटिंग सीरीज़। आप अपने हर दिन आंसर जो हमें भेज सकते हैं शाम तक, और जो इसकी इनिशिएटिव की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं और हर दिन एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द MCQs, सो कल के आंसर देख लेते हैं। पहले जो सैटरडे को हमने क्वेश्चन पूछा था, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज डी, कि कौन कौन से कोरल थे। तो सारे पार्ट्स हैं वो कोरल आइसलैंड के अंदर आते हैं। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन 2, उसके जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, कि कौन से स्टेट ने अनाउंस किया मध्य प्रदेश जो रोजगार सेतु स्कीम है, ठीक है, तो वो है मध्य प्रदेश, राइट। दिस वाज देयर इन द न्यूज़ एंड वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस एज वेल। तो आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड जो स्टैटिक पोर्शन से एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिलिका लेक। सो इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल सॉल्ट वाटर लेक इन एशिया। Chilka Lake is the largest coastal lagoon in India, is the second largest saltwater lagoon in the world, and it is located in the mouth of Daya River. So these three are very important, and this is directly from NCERT और जो शंकर इसकी जो बुक है बेसिकली इन्वायरमेंट की उससे सप्लीमेंटेड है, राइट। तो आप इसमें बता सकते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1 all of the above, right? So do let me know your correct answer in the comments down below. आप में से कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं and I sincerely thank you for that. Do participate, ज़्यादा नंबर पे पार्टिसिपेट करें और अपने प्रैक्टिस को बरकरार रखें ताकि रियल एग्जामिनेशन में आपको इसका बेनिफिट मिले। Now the second question is from current affair. Gender Social Norms Index is published by United Nations Development Program, नीति आयोग, एमनेस्टी नेशनल और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो इंडेक्स पे भी हर साल एक सवाल ज़रूर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको रियल एग्जाम में किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो। तो अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर द डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी+ अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड दिस विल हेल्प यू फॉर फर्दर प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, stay home, stay safe. Thank you so much.